کہانیوں کے سلسلے میں جو اگلی کہانی آپ سننے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سنہری مچھلی۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک ماہی گیر رہا کرتا تھا جس کا گزر بسر یوں ہی ہوتا تھا کہ جو مچھلیاں وہ دن میں پکڑتا دریا سے ان کو وہ جا کے بازار میں بیچتا اور اس سے جو بھی رقم جو بھی پیسے وہ کماتا ان سے اس کے گھر کا چولہا چلتا۔ اب ایک دن یہ ماہی گیر دریا پہ جال لگائے بیٹھا تھا اور انتظار میں تھا کہ چند مچھلیاں پکڑی جائیں اور کچھ اچھی رقم آ جائے جس سے یہ آج اچھا کھانا کھا سکے۔ مگر دن گزرتا گیا اور مچھلیاں تھیں کہ اس کے ہاتھ لگنے کی نہیں۔ کوشش کرنے کے باوجود جب سارا دن اس کو کوئی مچھلی نہ ملی اور تھک ہار کے یہ اپنے گھر واپس جانے لگا تو اس کو یوں محسوس ہوا کہ جال میں کوئی مچھلی آ پھنسی ہے۔ اب جو اس نے جال سے مچھلی نکالنے کی کوشش کی جو پھنسی ہوئی تھی اس جال میں، تو یہ دیکھ کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ وہ تو تھی سنہرے رنگ کی، ایک ایسی مچھلی جس کا نہ اس نے کبھی ذکر سنا تھا، نہ کبھی کسی نے اس طرح کی مچھلی کو آج سے پہلے دیکھا تھا، اور نہ ہی کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس دریا میں جو ماہی گیر کے گھر کے قریب ہی تھا ایک اتنی خوبصورت اور خاص مچھلی پائی جا سکتی ہے۔ اب ماہی گیر کی کوشش تھی کہ وہ جلدی سے جال سے وہ مچھلی نکالے، اس کو بالٹی میں ڈالے اور جا کے بازار میں بہت اچھے داموں میں بیچ دے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ بالٹی میں مچھلی ڈال سکتا بازار لے کے جانے کے لیے، مچھلی جو تھی وہ اس کے ہاتھوں سے پھسلتی ہوئی پھدکتی پھلانگتی پانی میں گری اور اس کی آنکھوں کے سامنے کہیں غائب ہو گئی۔ اب تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دریا کا پانی جو ہے وہ بالکل حرکت نہیں کر رہا، تھما ہوا ہے۔ کوئی مچھلی تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ کبھی اس دریا میں پائی ہی نہ گئی۔ اس ماہی گیر کو تو بہت غصہ آیا جب یہ، کیونکہ سارے دن کی مشقت کے بعد ایک مچھلی ہاتھ میں آئی تھی، وہ بھی سنہرے رنگ کی، اور وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اب تو یہ اس بالٹی کو پٹکتا اور جال کو کھینچتا اپنے گھر کی طرف واپس چلا۔ اس دن اس ماہی گیر نے ارادہ کیا کہ یہ جائے گا اگلے روز بھی دریا پہ اور سنہری مچھلی پکڑنے کی کوشش کرے گا، مگر اگر 3 دن لگاتار اس کو پکڑنے کی کوشش کے باوجود یہ سنہری مچھلی نہ پکڑ سکا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماہی گیری ہی چھوڑ دے گا۔ اور ہونا کیا تھا، 3 دن لگاتار کوشش کے باوجود اس کے ہاتھ سنہری مچھلی نہ لگی۔ تو جب تینوں دن مشکلیں سہ کے مچھلی نہ ملی تو اس نے واقعی میں ماہی گیری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی، اور اس دن سے اس نے ایک نئے پیشے میں اپنا ہاتھ آزمانے کی کوشش کی، اور یہ تھا کپڑوں کی تجارت۔ جو کہ مزے کی بات تھی، اس کو بہت راس آیا، اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ یہ اتنا اچھا کپڑوں کا تاجر تھا کہ خوب کمائی ہو رہی تھی اب اس کی، اور انہی دنوں جب یہ اچھی کمائی کرنے لگا تو اس کے دوستوں نے اس سے کہا کہ بھئی تم شادی کیوں نہیں کر لیتے، پہلی بیوی تو تمہیں بہت عرصہ پہلے چھوڑ گئی تھی، ویسے وہ تمہارے غصے کی وجہ سے چھوڑ گئی تھی، اب تو تمہیں غصہ بھی نہیں آتا، اب تو تمہارے گھر میں اچھا کھانا پینا سب موجود ہے، تو کیوں نہ تم دوسری شادی کر لو۔ تو اس آدمی نے دوسری شادی کر لی، اور جن خاتون سے کی وہ اپنی پہلی شادی سے ایک بیٹا ساتھ لے کے آئی جس کا نام علی تھا۔ یہ لڑکا بہت ہی فرما بردار تھا، وہ اس ماہی گیر کی بہت خدمت مدارت کیا کرتا تھا اور ہمیشہ اس کا کہا مانتا تھا، جس کی وجہ سے یہ ماہی گیر بھی خوش تھا، گھر میں پیسے بھی تھے، رقم بھی تھی، اچھا کھانے کو بھی تھا، پہننے کو بھی تھا، تو پرسکون ماحول تھا۔ مگر ایک چیز تھی جو ہر وقت اس ماہی گیر کو جو کپڑوں کی تجارت کیا کرتا تھا پریشان رکھتی تھی، اور وہ یہ کہ اس کے ذہن سے کبھی بھی وہ سنہری مچھلی نہیں نکلی تھی۔ اس کو آج بھی خیال آتا تھا کہ یہ دریا سے کسی طرح سے وہ مچھلی پکڑ لے، وہ سنہری مچھلی جو اس کے ہاتھ سے پھسل گئی تھی۔ اب ایک دن جب باپ پہنچا ہوا تھا اپنی دکان پہ تو بیٹا کچھ کاٹ کباڑ گھر سے صاف کر رہا تھا۔ اب سال بہت گزر چکے تھے اس سارے واقعے کو، اور لڑکا جو تھا جو اس کا سوتیلا بیٹا تھا ماہی گیر کا، وہ کچھ 17-18 برس کا ہو چکا تھا۔ جب یہ لڑکا کاٹ کباڑ صاف کر رہا تھا تو اس کو وہ جال ملا جس جال
से ये माहीगीर मछलियां पकड़ा करता था। और जाल देख के इसको बड़ी बच्चे को लड़के को हैरत हुई, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि अम्मा, कभी सुना तो नहीं है कि अब्बा का कोई माहीगीरी से भी ताल्लुक रहा हो, आपको मालूम था इस बात के बारे में? तो इस पे इसकी माँ ने इसको बताया कि हाँ, कुछ अर्सा पहले तक तुम्हारे अब्बा जो हैं वो माहीगीरी का काम करते थे, वो मछलियां पकड़ते थे, मगर फिर कहते हैं कि उनके हाथ से कोई मछली निकल गई और उसके गम में, उसके गुस्से में इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए माहीगीरी का पेशा ही छोड़ दिया। अब लड़के को अच्छा लगा ये कहानी सुन के कि भाई कोई इतना ख्याल कर सकता है, किसी को माहीगीरी से इतनी मोहब्बत हो सकती है कि एक मछली हाथ से छूट जाए तो वो माहीगीरी छोड़ दे। तो एक उस दिन उसका भी दिल चाहा कि क्यों ना वो जाए और जाके मछलियां पकड़ने की कोशिश करे दरिया में। वो जाल लेके चला तो गया। अब इंतजार में बैठा था, आज से पहले उसने भी कभी मछली पकड़ने की कोशिश नहीं की थी, पहली दफा था। इंतजार में बैठा था कि कुछ मछलियां हाथ लगे, घर लेके जाऊं, उनको भूनूं पकाऊं और बड़ा हमें मजा आए, सब मिलके खाएं उनको। पर ऐसे लग रहा था कि हाथ कोई मछली नहीं लगने वाली उसके। अब जब सारा दिन गुजर गया, शाम आ गई, तो उसको ऐसे महसूस हुआ कि जाल में मछली आ फंसी है। और ये वही मछली थी जो कई साल पहले उस माहीगीर को नजर आई थी, सुनहरे रंग की मछली। अली ने सुनहरे रंग की जो मछली थी उसको देखा जब अपनी आंखों से करीब से, तो उसको यूं लगा कि ये तो इतना खूबसूरत जानदार है, कोई इसको क्यों पकड़ के खाना चाहेगा या इसको बेचना चाहेगा। अब्बा क्या सोच रहे थे जब वो इस मछली को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे? मैं तो इस मछली को कभी भी नहीं पकड़ूंगा, मैं तो इसको कभी भी नहीं खाऊंगा। तो यही सोचते सोचते अली ने सुनहरी मछली जो थी उसको पानी में वापस छोड़ दिया और घर आके अपनी माँ को बताने लगा कि किस तरह से आज उसने भी सुनहरी मछली देखी थी दरिया में। पर उसको ये अंदाजा नहीं था कि उसका सौतेला बाप जो था वो घर आ चुका था और वो उसकी बातें सुन रहा था। और ये सुन के उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि अली ने सुनहरी मछली जो थी वो वापस पानी में छोड़ दी थी। अरे वो तो वो खास मछली थी जिसको हासिल करने के लिए इस माहीगीर ने कई दिन मुश्किलात सही थी, कई दिन इंतजार किया था और कई सालों से उसके जहन में बार बार उस मछली का ख्याल आता रहा था। अली की बातें सुन के इस माहीगीर को तो इतना गुस्सा आया कि वो इस लड़के को बाजू से पकड़ के घर से बाहर लेके गया और कहा, यहाँ से निकल जाओ, तुम तो मेरे बेटे ही नहीं हो, तुमने तो वो मछली छोड़ दी जिस मछली को हासिल करने की मैं कई दफा कोशिश कर चुका। और इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ कह दूं, बेहतर यही होगा कि तुम मेरा घर छोड़ के चले जाओ, तुम बिल्कुल ही निकम्मे। अब अली जो था उसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। एक मछली थी, एक जानदार था, खूबसूरत था, जिसकी जान मैंने छोड़ दी, जिसकी बख्श थी मैंने जान, और उसको नहीं खाया या उसको नहीं लेके आया, तो अब्बा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अब्बा को गुस्से में देख के इस लड़के को तो बस यही ख्याल था कि मैं किसी तरह से निकल जाऊं घर से, इससे पहले कि अब्बा और बरसे और फिर घर का माहौल खराब। अब जो ये लड़का जाने लगा घर से, तो इसकी माँ ने इसको कहा कि रुको, जाओ अपने लिए कोई नौकरी तलाश करो, कोशिश करो, मगर बिल्कुल कोई चीज लिए बगैर, हाथ मलते ना निकल जाओ इस घर से, कुछ लेके जाओ ताकि तुम्हारा सफर तो कम से कम सुकून का कटे। क्योंकि ये लोग रहा करते थे बहुत छोटे से कस्बे में, और जो शहर था जिधर सारा कारोबार हुआ करता था वो इनके घर से, इनके इलाके से बहुत बहुत दूर था। तो माँ को ये ख्याल था कि इतना लंबा सफर ये लड़का कैसे काटेगा। तो माँ ने कुछ रोटियां बनाई, एक थैले से में बांधी, इस लड़के के हाथ में थमाई और साथ इसको कुछ कपड़े पहनने वाले कुछ इसकी चीजें भी दी और कहा कि ये लेके तो जाओ, अपनी किस्मत आजमाओ, तुम्हारे बाप का गुस्सा जो है वो कुछ अरसे में कम हो जाएगा और जब तुम कोई अच्छी नौकरी तलाश करके वापस आओगे घर, कोई कमाई लेके आओगे, तो शायद वो तुम्हें कुछ भी ना कहे और वो तब तक सुनहरी मछली के इस किस्से को भूल जाए।
अब अली जो घर से निकलने लगा तो दहलीज पे खड़े होकर उसकी माँ ने उसे एक नसीहत की। उसने कहा कि अगर रिश्ते में तुम्हें कोई साथी मिल जाए, कोई हमसफर जो तुम्हारी तरह ही भटक रहा हो, नौकरी की तलाश में हो, तो तुम उसकी मदद करने से बिल्कुल ना कतराना। एक तो इन रोटियों में से कुछ हिस्सा उसको भी देना, उसको खिलाना, और दूसरा किसी पे बगैर सोचे समझे एतबार ना करना। अगर कोई ऐसा मौका है जो तुम्हें लगे कि ये इंसान जो तुम्हारे साथ चल पड़ा है वो एतबार के काबिल नहीं, तो उसको आजमाने के लिए अपना सामान जो है वो देना और कहना मैं थोड़ी देर सुस्ताने लगा। अगर तो वो तुम्हारे सामान की हिफाजत करे और तुम्हारे सुस्ताने में तुम्हारे आराम करके उठने का वापस इंतज़ार करे, तो समझ लेना कि वो एक अच्छा सफ़र का साथी है। और अगर ऐसा ना हो, वो छोड़ के चला जाए या वो तुम्हारे सामान में से कुछ ले जाए, तो समझ लेना वो एतबार के काबिल नहीं था। अब अली निकल पड़ा सफ़र पर। पूरा एक दिन गुजर गया। पहले तो पैदल चलता रहा। पैर जो थे वो थक चुके थे, कपड़े जो थे वो पसीने से भर चुके थे, हालत थी कि ख़राब थी। कुछ देर रुक के उसने थोड़ा सा खाना खाया जो रोटियां माँ ने बना के दी थी, और आराम किया, और फिर उठा और चल पड़ा, क्योंकि ये 4-5 रोज का सफ़र था जो उसको तय करके शहर पहुंचना था। रास्ते में उसको एक आदमी मिला। उस आदमी ने उससे बड़ी मीठी मीठी बातें की। उसे कहा हाँ मैं भी उस इलाके में जा रहा हूँ जिस इलाके की तरफ तुम जा रहे हो, तो क्यों ना दोनों मिलके साथ चलें, और इस तरह से सफ़र भी अच्छा गुजर जाएगा, कोई मुश्किल भी नहीं आएगी, बातें करते करते पता ही नहीं लगेगा कि दिन कहाँ गुजरे। चल पड़ा ये लड़का उसको साथ लिए। दोनों चलते रहे, मगर शाम जब हुई तो अली ने इस आदमी को आजमाना चाहा, और आजमाने के लिए अपनी माँ की नसीहत को याद करते हुए अली ने अपना सामान और कुछ रोटियां उस आदमी को थमाई और कहा आप थोड़ी देर इनका ख्याल कीजिए, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, मैं बहुत थका हूँ। मगर जब अली उठा तो उसने देखा कि ना तो वहाँ रोटियां थी और ना वहाँ सामान, और अब तो सिर्फ इस लड़के के पास वो 2 रोटियां रह गई थी जो उसने जेबों में भर ली थी अपने कपड़ों के। वो भी इसलिए क्योंकि वो सारी रोटियां उसको नहीं दे सकता था। उसको पता था कि बहुत लंबा सफ़र है, रकम है कोई नहीं पास, किस तरह से गुजारूंगा अगर खाने को भी ना कुछ हुआ। अगला दिन, तीसरा दिन सफ़र का शुरू हुआ। 2 दिन अभी रहते थे। चलते 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 ये लड़का एक ऐसे गांव के करीब पहुंचा जहाँ के लोग खेती बाड़ी में मसरूफ थे, और इसकी तरह के और कोई मुसाफिर तो ऐसे लगता था कि उस रास्ते से कभी गुजरे भी नहीं होंगे। समझ इसको बिल्कुल भी नहीं आ रही थी कि ये कहाँ पहुंचा है। अब तो इसको ये भी लगने लगा था कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया। इसी ख्याल ने इसको खेत किनारे बैठे एक लड़के से ये पूछने पे मजबूर कर दिया कि मैं सही रास्ते पे हूँ ना, शहर का रास्ता यही है? तो ये लड़का जो खेत किनारे बैठा था, जिसका नाम इमदाद था, उसने अली से कहा कि हाँ भाई रास्ता तो ठीक है, मगर दिखने में यूँ लगता होगा कि ये शहर नहीं लेके जाएगा तुम्हें। ये तो बस चंद गांव हैं, इनको गुजर जाओगे, फिर कुछ कस्बे और आएंगे और फिर आखिरकार तुम शहर में पहुंच जाओगे। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि शहर की तरफ तो मैंने भी जाना था, दोनों मिलके चलते हैं और तुम्हारा सफ़र आसानी से कट जाएगा इस तरह, और मैं भी अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। अब अली और इमदाद दोनों चल पड़े शहर की तरफ, और जब अली ने इस नए दोस्त को, इमदाद को आजमाना चाहा और वो आखिरी 2 रोटियां उसके हाथ में थमा के कहा कि मुझे थोड़ी देर सुस्ताना है, सोना है, तुम ये संभाल के रखना रोटियां, तो उसको बिल्कुल भी अपने इस फैसले पे शर्मिंदगी या परेशानी नहीं हुई, क्योंकि इमदाद तो वाकई अच्छा दोस्त निकला। उसने उन 2 रोटियों को संभाल के रखा जब तक अली नींद से उठ नहीं गया, और जब अली नींद से उठा तो इन दोनों ने वो मिल बांट के खाई, और
جو آخری مرحلہ تھا سفر کا، جو ایک آخری دن کا سفر رہ گیا تھا، اس کو طے کرنے نکلے۔ اب دونوں لڑکے آخر کار آ پہنچے شہر میں، پر جب تک یہ شہر میں پہنچے نہ تو کھانے کو کچھ تھا پاس، نہ پیسے تھے پاس، کریں تو کریں کیا؟ بھوک تھی کہ زوروں کی لگی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ سوکھی روٹیاں اور کبھی کسی جگہ سے پانی، کبھی کہیں سے پانی پی کے ہی تو گزارا ہوا تھا ان کا۔ کوئی کھانے کی صحیح چیز تو ان کو ملی نہیں تھی۔ اب ان دونوں کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم کسی ڈھابے پہ بیٹھ کے، کسی جگہ بیٹھ کے کچھ کھا پی لیں، اور اگر کوئی پیسوں کا مطالبہ کرے گا، کوئی کہے گا کہ بھئی پیسے دو اس کھانے کے، تو ہم اسے کہیں گے کہ دیکھو ہم تمہارا کام کر دیتے ہیں، ہم تمہارے برتن دھو دیں گے، تمہارے اس ساز و سامان کی صفائی کر دیں گے، اگر تم اجازت دو تو ہم تمہاری اس طرح سے رقم جو ہے اس کا ازالہ کر دیں گے۔ اب جب یہ دونوں پہنچ گئے شہر کے اندر اور کھانا کھانے بیٹھے ایک چھوٹے سے ڈھابے پہ، تو کھانا کھانے کے بعد انہوں نے ڈھابے کے مالک سے کہا کہ ہم آپ کے برتن دھو دیتے ہیں، کیونکہ پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں، آپ برتن دھلوائیے اور ہمیں جانے دیجیے۔ پر ان دونوں کو کیا پتا تھا اس علاقے کا تو ایک بڑا ہی عجیب اصول تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر کوئی کھانا کھا کے اس کے پیسے نہیں دیتا تو اسے بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اور پھر کڑی سے کڑی سزا دی جاتی تھی، کیونکہ یہ اس کام کو دھوکہ سمجھتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ کسی نے دھوکہ دیا ہے، دغا دیا ہے، کھانا بھی کھا لیا ہے اور اس کے بعد اس کے عوض جو رقم بنی تھی وہ بھی ادا نہیں کی۔ اب ان دونوں لڑکوں کو یہ پریشانی آ پڑی کہ کہاں جائیں۔ اب تو بادشاہ سلامت کے سامنے ان کو پیش کیا ہی جانا تھا، کیونکہ انہوں نے کھانا کھایا تھا اور اس کے پیسے ادا نہیں کیے تھے۔ جب بادشاہ کے سامنے لے کے جائے گئے علی اور امداد، تو یہ دونوں کچھ پریشان تھے کہ کسی طرح سے ہمیں اس مشکل سے نکلنا ہوگا، ہم تو کام کی تلاش میں آئے تھے، یہ کس جگہ پھنس گئے۔ اب دونوں لڑکے کھڑے تھے، وزیر اور بادشاہ جو تھے وہ کچھ سوچ میں پڑے تھے۔ وزیر کے ذہن میں ایک ترکیب آ رہی تھی اور بادشاہ سلامت یہ سوچ رہے تھے کہ ان لڑکوں کو کیا سزا دی جائے جو کہ ایسی ہو کہ آج کے بعد، اس دن کے بعد کبھی کوئی انسان، کوئی نیا آنے والا اس علاقے میں یہ غلطی کرنے کی کوشش نہ کرے جو ان دونوں لڑکوں نے کی تھی، کھانا کھانے کے بعد پیسے نہ دینے کی۔ اب یہ سارا جو معاملہ تھا، اس کو دیکھتے ہوئے وزیر جو تھا اس کے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ بہت ہی ہمت والے لگ رہے ہیں، بڑے تگڑے، جوان اور مضبوط اعصاب کے لڑکے لگ رہے ہیں، کیونکہ یہ بادشاہ کو دیکھ کے ڈر نہیں رہے، گھبرا نہیں رہے، ان کو پریشانی نہیں ہو رہی، ان کی پریشانی پہ پسینے نہیں آئے ہوئے، یہ بادشاہ کی سلامت کے سامنے بھی اس طرح سے کھڑے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور یہ اپنا مدعا ایسے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں جیسے کہ یہ بہت ہی عقل مند اور ہوشیار ہے۔ تو وزیر جو تھا اس نے بادشاہ سلامت کے کان میں کچھ کہا، جس پہ بادشاہ سلامت بھی سوچ میں پڑ گئے۔ اب علی اور امداد یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا کانوں میں باتیں کر رہے ہیں، بتا کیوں نہیں رہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے ہمیں سزا دینی ہے، ہمیں چھوڑنا ہے، یہاں کوئی عدالت لگانی ہے جہاں پہ ہم اپنا موقف پیش کر سکیں، کہہ سکیں، بتا سکیں کہ بھئی ہم تو برتن دھونے کو تیار تھے، ہم تو کام کرنے کو تیار تھے، ہم نے تو صرف کھانا ہی کھایا ہے، کوئی چوری نہیں کی، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ مگر ان کو کیا پتا تھا کہ بادشاہ تو بہت ہی دکھی تھا، اس کی بیٹی پیاری سی شہزادی جو اس کی کل کائنات تھی، سب کچھ تھی اس کے لیے، وہ ایک چڑیل اور اس کے 2 بیٹے اٹھا کے لے گئے تھے، اور اس بیٹی کو بچانے کے لیے یہ کئی دفعہ بہت سے سپاہی بھیج چکا تھا، مگر جب بھی سپاہی جاتے تو اس کی بیٹی تو واپس نہ آتی، مگر ان سپاہیوں کا برا حال ہوا، وہ خود واپس آ جاتے یا
मारे जाते। अब इन दोनों लड़कों को देख के बादशाह सलामत को लगा कि ये दोनों हो सकता है मेरी बेटी वाकई बचा लाएं, और वजीर जो कान में बात कह रहा था वो भी यही थी कि इन दो तगड़े लड़कों को आप भेजिए, क्या पता ये हमारी शहजादी को वापस ला सकें उस चुड़ैल और उसके बेटों के शिकंजे से। अब ये तय पाया कि इनको भेजा जाएगा काले पहाड़ की तरफ, जिस पहाड़ पे उस चुड़ैल ने अपना घर बनाया हुआ था, और वहीं पे उसने कैद करके रखा था उस इलाके की शहजादी को। अब जनाब ये लड़के निकले, घोड़े पे सवार दोनों जा रहे थे, दिल में जोश भरे कि हमें शहजादी को बचा के लाना है और किसी तरह से बादशाह सलामत से रहम की उम्मीद रखनी है ताकि वो हमें छोड़ दें और हम कोई कमाई कर सकें, कुछ हासिल कर सकें, वो जो हम हासिल करने आए थे यहाँ पे। अब दोनों लड़के जो पहुंचे काले पहाड़ पे, तो उनको ऐसे लगा कि वहां खामोशी छाई हुई है, कोई कभी वहां से ना गुजरा है और ना ही किसी ने कभी उस जगह का रुख करने की कोशिश की है। अब जैसे जैसे ये लड़के उस पहाड़ पे आगे बढ़ने लगे घोड़े को नीचे बांध के, तो इनको यूं लगने लगा कि कोई भारी भारी कदमों के साथ पहाड़ की पिछली तरफ से इनकी तरफ बढ़ रहा है, सामने की जानिब आ रहा है। अभी इससे पहले कि अंदाजा लगा सकते कि आवाज आ कहां से रही है, वाकई कहीं और से आ रही है, इनके पीछे से तो नहीं आ रही, कि इनके सामने आ खड़ी थी वो चुड़ैल जिसने शहजादी को कैद कर रखा था। अब कहने को तो वो चुड़ैल थी, मगर असल में तो वो एक बहुत ही बुरी जादूगरनी थी। लोग उसको चुड़ैल समझा करते थे और उसके बेटों को जिन कहा करते थे। अब जिनों और चुड़ैलों का तो पता नहीं, मगर ये जरूर था कि ये जादूगरनी और इसके बेटे हर किसी को काबू करना जानते थे अपने जंतर मंतर से। और जैसे इस औरत ने, इस चुड़ैल ने, इस जादूगरनी ने इन लड़कों को देखा, तो पहले तो उसने जोर जोर से हंसा। उसने कहा, वाह, बड़े तगड़े नौजवान भेजे हैं, तुम्हें लग रहा होगा कि आज जरूर अपनी शहजादी को बचा लोगे है बादशाह, पर तुम्हें क्या पता, तुम्हारी शहजादी मैं इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी, कम से कम तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम्हारी सल्तनत मेरी नहीं हो जाती, जब तक मैं उस पर काबू नहीं पा लेती, जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देती। अब ये कहते कहते जब ये चुड़ैल सामने आ गई इन दोनों लड़कों के, तो एक लम्हे के लिए तो ये दोनों डर गए, क्योंकि वो दिखने में इतनी खौफनाक थी कि अगर कोई आम इंसान उसको देखता, ये तो बहुत बाहिम्मत थे, अगर कोई आम इंसान उसको देखता तो वो तो जरूर बेहोश हो जाता। ऐसे लगता था कि कभी उसने कपड़े नहीं बदले, कभी नहाया नहीं, बाल थे कि बिखरे हुए, ऐसे लगता था कि पूरे चेहरे पे मिट्टी मल ली हो उसने, और उससे इतनी बदबू आ रही थी कि कोई उसके करीब खड़े होने की सोच भी नहीं सकता था। मगर ये दोनों लड़के तो जोश से भरे हुए थे, इनको तो था कि हमने शहजादी बचानी है और अपनी भी जान बचानी है। इससे पहले कि चुड़ैल उन पे हमला कर सकती, इन्होंने उस पे ऐसा वार किया कि चुड़ैल जो थी वो धड़ाम करके नीचे गिरी और दम दे गई। अब रह गए उस चुड़ैल के दो बेटे, पर इनको तो ये अंदाजा ही नहीं था कि चुड़ैल के दो बेटे भी हैं जो इनसे मुकाबला करने आएंगे। अभी तो ये क्या देख रहे थे कि दूर पहाड़ी से एक बड़ी ही प्यारी सी लड़की जो है वो भागती नीचे आ रही है, और वो इनसे कहते जा रही है कि यहाँ से चले जाओ, चुड़ैल जो है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी, उसके बेटे जो हैं वो तुम्हें पछाड़ देंगे और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये लड़की जब इनके सामने आई तो इन्होंने हैरत से पूछा कि आप कौन? तो इस लड़की ने कहा कि मैं इस इलाके की शहजादी हूँ जिसको इस चुड़ैल ने, जादूगरनी, जो भी तुम इसको कहना चाहो, पकड़ रखा था, और इससे पहले कि वो चुड़ैल आ जाए तुम लोग जाओ, खुदारा अपनी जान बचाओ।
तब इन लड़कों ने कहा कि आप जरा दाहिनी जानिब देखें तो सही, वो चुड़ैल तो दम दे चुकी है, गिरी पड़ी है और हमने उसका खात्मा कर दिया है। अब पर आप तो इसके बेटों की बात कर रही हैं, वो कहाँ है? अब ये कहना था कि एक तरफ से एक बेटा निकला इस चुड़ैल का, दूसरी तरफ से दूसरा। एक ने एक लड़के को, एक ने अली को पकड़ने की कोशिश की, एक ने इमदाद को, और दोनों को खूब मजा चखना पड़ा उनकी ताकत का, चुड़ैल के बेटों की। वो दोनों बेटे चुड़ैल के इतने ताकतवर थे कि अब तो ऐसे लगता था कि अली और इमदाद दोनों उनके शिकंजे से बाहर नहीं निकल पाएंगे और वाकई शहजादी को वापस महल नहीं लेके जा पाएंगे। मगर देखते ही देखते यूं लगने लगा कि जैसे इमदाद बहुत ही कुछ खास ताकतें रखता है। उसने देखते ही देखते उन दोनों चुड़ैल के बेटों का खात्मा कर दिया और अली जो था उसकी भी जान बचा ली और शहजादी की भी जान बचा ली। अब तो ये सब इतना खुश हुए कि इनको था कि बस किसी तरह से वापस महल जाया जाए। अब जो ये महल पहुंचे तो बादशाह सलामत अपनी बेटी को देख के इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि मैं इन लड़कों को बहुत सी अशरफियों, बहुत से रकम से, बहुत से हीरे जवाहरात से नवाजूंगा और साथ ही साथ मैं इनमें से किसी एक लड़के को अपनी बेटी का हाथ भी दूंगा, उसकी शादी भी कर दूंगा इनसे। तो अब इन दोनों पे था कि कौन शहजादी के लिए आगे बढ़ता और कहता कि ठीक है, मैं उनसे शादी करना चाहूंगा। अब ये दोनों आपस में बातें करने लगे। अली ने इमदाद से कहा कि भैया, आप तो बिल्कुल मेरे सगे भाइयों जैसे हैं, आपने ही तो उन दोनों चुड़ैल के बेटों से हमारी जान बचाई। आप ही तो थे जिन्होंने शहजादी को भी बचा लिया और मुझे भी बचा लिया। तो बेहतर यही होगा कि आपकी शादी शहजादी से कर दी जाए और आप इस सल्तनत में सुकून से अपनी जिंदगी बसर करें। मेरे लिए तो बस यही काफी है कि मेरी जान बच गई, मैंने कुछ रकम कमा ली, अब मैं कोई अच्छी नौकरी ढूंढूंगा, अपने अब्बा को खुश करूंगा और फिर इस इलाके से वापस चला जाऊंगा। मगर इस पे इमदाद, जो अली के सफर का साथी था, उसने उसको वो राज बताया जो कभी भी अली नहीं सोच सकता था कि ऐसा हो सकता है। जब इमदाद को अली ने कहा कि आप शादी कर लें, तो उस वक्त इमदाद ने अली को बताया कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई आम नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। तुम तो मुझे इंसान की शक्ल में देख रहे हो। आओ चलो वापस चलते हैं और उस दरिया पे जाते हैं जिस दरिया पे तुमने कभी सुनहरी रंग की एक मछली पकड़ने की कोशिश की थी। अब अली थोड़ा परेशान हुआ कि इनको कैसे पता कि मैंने कभी सुनहरे रंग की मछली पकड़ने की कोशिश की थी। मैंने तो इस वाकये का जिक्र नहीं किया इससे, इमदाद से। मगर यकीन था अली को कि उसके सफर का साथी झूठ नहीं बोल रहा। हो सकता वाकई कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा राज है जो वो मुझे बताना चाह रहा है। तो ये वापसी के सफर पर निकले और जब ये वापस पहुंचे उस दरिया पे, जिस दरिया पे कभी अली ने और उसके सौतेले बाप ने एक सुनहरी मछली पकड़ी थी, तो इमदाद जो था वो आहिस्ता आहिस्ता से पानी में उतरा और अली की नजरों के सामने वो एक सुनहरी मछली में तब्दील हो गया। और वो सुनहरी मछली ऐसे लग रहा था जैसे अली का शुक्रिया अदा कर रही हो और उससे कह रही हो कि ए रहम दिल लड़के, तुमने मुझ पे बहुत एहसान किया था, तुमने मेरा बहुत ख्याल किया था और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी उस नेकी का बदला देने के लिए तुम्हारे साथ इस सफर में निकल पड़ा था। जब सुनहरी मछली पानी की लहरों में गायब हो गई तो अली जो था वो वापस शहर जा पहुंचा और जाके उसने बादशाह सलामत को सारा माजरा बताया कि किस तरह से उसने
ایک وقت پہ ایک سنہری مچھلی کی مدد کی تھی اور وہ سنہری مچھلی پھر اس کی مدد کو آئی، اور پھر آخرکار شادی تو ہونی تھی علی کی اور شہزادی کی، اور شادی کے بعد وہ سب وہاں پہ خوش و خرم رہے، اور علی نے اپنے ماں باپ کو، ماہی گیر کو بھی وہ قصہ سنا دیا، جس کی وجہ سے وہ اس سے بہت خوش ہوا، بہت راضی رہا، اور اس طرح سے یہ کہانی جو تھی سنہری مچھلی کی وہ ہو گئی ختم۔